हेलो फ्रेंड्स। तो हमारा आज का टॉपिक है हाउ टू बिकम प्रोफेशनल ट्रेडर। तो मैंने आजकल मैं यूट्यूब वीडियोस में देखता हूँ कि लोग कई सारी स्ट्रेटजीज को सर्च करते रहते हैं, आर्टिकल देखते हैं और बहुत सारी स्ट्रेटजीज को फॉलो करते हैं, उनका बैक टेस्टिंग करते हैं। एंड उनकी ये सोच है कि अगर हम बहुत सारे स्ट्रेटजीज सीख जाएंगे तो हम प्रोफेशनल ट्रेडर बन जाएंगे। बट इन रियलिटी इट इज़ very different. So you will not become professional trader by learning different types of strategy. Instead of you will become professional trader by learning um, some points which you can see in this PPT. So I'll discuss each and every point one by one, and also I'll go in detail for each point. I'll go in detail. So that's how you become the professional trader. But आजकल लोग स्ट्रेटजी के पीछे भाग रहे हैं, तो जो कि बिल्कुल ही गलत है। तो लेट्स सी हाउ टू बिकम प्रोफेशनल ट्रेडर। सो हम हमारा यहाँ पर पहला पॉइंट है फॉलो मार्केट ट्रेंड। और ये सारी चीज़ें ऐसी होने वाली हैं कि ये आपकी हमेशा ही काम करेंगे। आपका मार्केट किसी भी कंडीशन में चल रहा हो, बेरिश फेज में हो या बुलिश फेज में हो, और आप अगर ट्रेडिंग कर रहे हैं तो ये आपको चीज़ें ये फॉलो करनी ही पड़ेंगी। अगर आप स्ट्रेटजी नहीं भी फॉलो करते हो तब भी आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर या प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। बट अगर आप ये सब नहीं फॉलो करते हो और आपको कई सारी स्ट्रेटजीज आती हैं तो आप कभी भी एक प्रोफेशनल ट्रेडर नहीं बन सकते हो। तो ये सो दीज आर द बेस लेयर, लाइक बेस बेस थिंग्स ऑफ दिस शुड बी इन द बेस ऑफ योर माइंड। तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, उसके बाद आपको स्ट्रेटजी सीखनी है। पहले आपको ये सब सीखना है, उसके बाद आपको स्ट्रेटजी सीखनी है। तो लेट्स सी वन बाय वन। तो फर्स्ट विल डिस्कस फॉलो मार्केट ट्रेंड। तो वी शुड ऑलवेज फॉलो मार्केट ट्रेंड। तो हमने सारे लोगों से सुना भी है कि ट्रेंड इज योर फ्रेंड। तो this line we should keep in our mind that whenever we are trading, so we should follow the market trend. तो आप ट्रेंड किस तरह से फॉलो करते हो? तो आप आप अपनी एनालिसिस को इस तरह से डिवाइड कर सकते हो कि फर्स्ट यू विल डू द एनालिसिस ऑफ द मेजर इंडेक्सेस। मेजर इंडाइसेस यू विल चेक निफ्टी, बैंक निफ्टी, मिड कैप, सेंसेक्स। So these major indexes you will check, and after that you will check sector. So you will see what all sector are in green and what are all sector in red. So you will check the sector wise. You will check the detail how sectors are performing on that particular day. And and once you have done the analysis of Nifty and the sector, then you will see if suppose particular sector is green, so which sector is performing very like have gained 2-3% or 6 or 7 or 8 or 10%. So you will see in green sector, so which sector is performing good on that particular day. And also then you can check in the bearish sector, which sector is performing very low or is very down by 3 or 4 or 7%. So suppose if you are going for bullish trade, so what you can do, if suppose if on that particular day Nifty is up, Nifty is in green, or Nifty is in plus, move by one or like move by some percentage. So on that day you will think about the bullish trade, and you will think about the bullish trade, and you will check the stock sector analysis. So you will see which sector is on top, and from that sector you can pick one or two stock for your analysis or for your trade. And suppose if that particular day your Nifty is in red, okay, so what you can do, you will not go to sector, you will not go to on those stock where sector is in green. So if Nifty is red,
So you will go you will go for sector. You will check sector. Their sector is green, sector is red, and you will check the stock. So on bearish day, you will see the stock. You will see the stocks of those sector which are in red, and on bullish day, you will see the stocks which are uh, which have sector in green state. So you have to follow the market trend. So if you are not you will not follow the market trends, and then definitely you will be like you can be in loss, or you are inviting to loss. So this is the first point. Follow You have to follow market trend. So and now let's come this. Let me take highlighter. So the second point is daily chart analysis or bigger time frame analysis. So whenever we are doing any trade, so we have to do the analysis on the bigger time frame. So suppose if we are a scalper, or if you are doing in 5 or 10 minute chart, so we have to see the one day chart, or daily chart, or monthly or weekly chart. So हमें डेली और वीकली और मंथली चार्ट पे ये देख लेना कि डेली मंथली चार्ट पर ये स्टॉक जो है अप साइड पर है या डाउन साइड पर है। तो जब एक बार हमें बिगर टाइम फ्रेम एनालिसिस या बिगर टाइम फ्रेम की पिक्चर मिल जाती है, तो उसके बाद हम अ, अपना स्कैल्पिंग टाइम फ्रेम पे या 1 मिनट 5 मिनट और 10 मिनट टाइम फ्रेम पे ट्रेड ले सकते हैं। बट बिफोर दैट वी शुड हैव एटलीस्ट one time we should check the stock in the bigger time frame. So how that is it is in downtrend from last 1 week, or is it in uptrend in last 1 week? Okay, and then you are just seeing that 1 second time frame or 1 minute time frame, and you are taking that trade. So this will be very huge mistake from your side if you are doing that. So definitely you have to follow daily chart analysis for your any type of trade, intraday or intraday trade on that particular day trade. And now I'm coming to third point: strong entry in trade and the exit from trade. तो हमने कई बार लोगों को बोलते हुए सुना होगा कि कि जैसे ही मैं ट्रेड में एंट्री करता हूँ और मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। तो अक्सर ये इसलिए होता है क्योंकि हमारी एंट्री उतनी स्ट्रांग नहीं होती है, या हमने रिस्क रिवॉर्ड के लिए उतनी एनालिसिस नहीं की होती है, अ, या हम करेक्ट पैटर्न के करेक्ट पॉइंट पर एंट्री नहीं कर रहे होते हैं। बस किसी ने ये बोला कि स्टॉक ऊपर जा रहा है, या कहीं से एक टिप्स आए कि बाय दिस स्टॉक एट दिस प्राइस, एंड व्हाट वी डू, वी जस्ट इमीडिएटली हिट द बटन एंड बाय बटन, एंड योर ट्रेड गेट स्टार्टेड. So this should not be the case. You don't have to start your trade in just one click. So at least think, like, just give a quick thought. Is it your entry is strong enough or good enough to give the profit? अगर आपको ये अंदर से फील आता है कि अगर आपकी एंट्री स्ट्रांग नहीं है और ये जो ट्रेड है वो आपको प्रॉफिट दे सकती है, तो तो ही आपको ट्रेड में जाना चाहिए, अदरवाइज नहीं जाना चाहिए. You need to have that risk reward ratio analysis, and also you need to check, is market is in my favor, and have I done the daily chart analysis on the bigger time frame, and how the stock sector is performing for that particular stock where I'm going to trade. Okay, so these things you have to check. And am I trading at the correct point of the whatever pattern or technical indicator or indicators you are following? So am I following those things? Okay. And also you need to think about the exit from trade. तो exit के लिए मैं एक रूल बोलना चाहूंगा कि suppose if you are planning your trade in one if you are planning your trade on the basis of 1 minute chart. Okay, so you have to exit within 1 minute, क्योंकि आपने 1 मिनट को देखकर चार्ट अपना ट्रेड लिया था, तो आपको क्या करना है कि ये उस 1 मिनट के अंदर ही अपने ट्रेड से एग्जिट कर जाना है. और अगर दूसरा सिनेरियो ये कि अगर आपने 5 मिनट का ट्रेड लिया हुआ है, तो आपको
5 मिनट के 5 मिनट का ट्रेड लिया हुआ है तो 5 मिनट के अंदर ही आपको ट्रेड से एग्जिट हो जाना है। और या आप अगर एक दिन का टाइम फ्रेम है, एक दिन का टाइम फ्रेम को देख कर आपने ट्रेड किया है, देन यू कैन वेट टिल 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 3 p.m. टिल लाइक क्लोजिंग ऑफ द मार्केट। बट अगर आप ये सोचते हो कि आपने 5 मिनट का चार्ट चार्ट देख के एंट्री कर ली और उसके बाद फिर आप लॉस में जाने लगे एंड देन यू कीप वेटिंग, तो वो ट्रेड आपका बहुत बड़ा लॉस में जा सकता है। तो आपको क्या करना है कि एग्जिट के लिए आप जिस भी टाइम टाइम फ्रेम को देखकर आपने ट्रेड में एंट्री ली है, तो उसी टाइम फ्रेम के अंदर ही अंदर आपको उस ट्रेड से बाहर हो जाना है। अगर आपने 15 मिनट का चार्ट 15 मिनट के चार्ट को देख के एंट्री लिया है, तो आपको 15 मिनट के अंदर एग्जिट कर लेना है। अगर आपने 30 मिनट के चार्ट को देख के एंट्री की है, तो आपको 30 मिनट के अंदर उस ट्रेड से एग्जिट ले लेना है। तो ये एक एग्जिट time based exit है। So this I think you should follow, and I have also analyzed, and also I've seen in my daily to daily live trade. So I have observed that if I would have exit on the basis of the time frame which on which I was taking the trade, like took the entry in the trade. So this rule you can follow for exit from the trade. Okay. Now I'm coming to position sizing. तो हमेशा आपकी पोजीशन साइजिंग जो है वो आप के लॉस कैपेसिटी के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। और और यूजुअली क्या होता है कि हम ये सोचते हैं कि चलो 10 लॉट ले लेते हैं, और जैसे ही 2 पॉइंट, अगर एक लॉट पर्टिकुलर लॉट 500 का है और हमने 10 लॉट लिए हैं मीन्स 5000, तो अगर 2 पॉइंट भी ऊपर जाएगा तो हमें 10,000 का प्रॉफिट हो जाएगा। तो हम इस तरह से सोचकर क्या करते हैं कि हम बड़ी पोजीशन पे ट्रेड कर लेते हैं। बट एक्चुअली क्या होता है कि अगर किसी भी बार हमारा ट्रेड जो है हमारे फेवर में नहीं जाता तो हमको एक बड़ा लॉस होता है। और फिर उस टाइम हम 2 पॉइंट नहीं फिर क्योंकि हम 2 पॉइंट के लिए प्रॉफिट के लिए देख रहे होते हैं, लेकिन एक्चुअली में क्या होता है कि जब हम फंस जाते हैं तो उस दिन हम 4 या 5 पॉइंट या 10 पॉइंट या ज़्यादा पॉइंट का लेस लॉस लेके निकलते हैं। तो हमेशा हमें पोजीशन साइजिंग इस तरह से करनी चाहिए कि जो लॉस है वो हम बेयर कर सकें उस पर्टिकुलर डे के लिए। जो भी हमने लॉस सोचा है वो लॉस हमारे कैपेसिटी के अंदर होना चाहिए। सो पोजीशन साइजिंग इज़ वेरी वेरी क्रिटिकल, क्योंकि अगर अगर पोजीशन साइजिंग आपकी ज़्यादा और उस दिन सपोज कोई स्पाइक आ गया या ये कोई मार्केट न्यूज़ आ गई, तो आप कंप्लीटली मतलब आपका कैपिटल वाइप आउट हो जाएगा। तो इसलिए ज़्यादा प्रॉफिट के लालच में आपको पोजीशन अपनी कभी इंक्रीज नहीं करनी चाहिए। पोजीशन साइजिंग आप इंक्रीज कर सकते हो, लेकिन जब उसमें आप कॉन्फिडेंट हो। क्योंकि और इसमें ये भी पॉइंट है कि अगर आप पोजीशन साइजिंग हमेशा छोटी रखेंगे तो आपको कभी बड़ा प्रॉफिट भी नहीं होगा। तो आपको पोजीशन साइजिंग स्ट्रांग करनी है व्हेन यू आर वेरी 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 कॉन्फिडेंट इन योर ट्रेड, देन यू कैन यू कैन इंक्रीज योर पोजीशन साइजिंग, बट विथ स्टॉप लॉस। यू शुड हैव सम स्टॉप लॉस कि मैं आई एम गोइंग फॉर 10 लॉट। सो अगर 10 लॉट में अगर ये 10 पॉइंट भी नीचे चला जाता है, तो मेरा स्टॉप लॉस जो हिट होगा वो मेरे स्टॉप लॉस हिट होने के बाद जो मेरे को लॉस होगा वो मेरी कैपेसिटी के अंदर होगा। तो इफ यू आर गोइंग फॉर लार्ज पोजीशन, तो so you should have definitely you should have a stop loss, otherwise you will be facing big loss. And to become a professional trader you have to avoid big loss. You should not have big loss. Okay. Now I'm coming to set a stop loss. So stop loss also you should have amount. Either you can have amount stop loss or a time stop loss. So time stop loss means, suppose if you have taken trade at 9:30, okay, and you waited till 10 a 10, so आधे घंटे आपने वेट किया। तो
और उसके बाद क्या हुआ कि ट्रेड आपके फेवर में नहीं जा रही है, तो आपने क्या किया कि तीन मार्केट क्लोजिंग तक वेट किया, और उसके बाद आप कि इवन मतलब ना आपको फायदा हुआ ना आपका नुकसान हुआ, और आप उस ट्रेड से बाहर आ गए। बट इसमें क्या हुआ कि आपका 9:30 से लेकर जो 3 का टाइम है वो वेस्ट हो गया। तो आप क्या कर सकते थे कि 9:30 पे, 9:30 से 10 तक आपने जो वेट किया, वहां पे आप एग्जिट करके आप दोबारा फिर से री एंट्री कर सकते थे। तो क्योंकि जब आप 9:30 से 3 तक वेट करोगे तो आपको मेंटली मेंटली बहुत आपका टॉर्चर होगा, मेंटली आप स्ट्रेस हो जाओगे बहुत ज़्यादा कि 9:30 से 3 तक मेरे को वेट करना, मतलब आप हमेशा देखते रहोगे ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है। तो आपका मेंटली बहुत टॉर्चर होगा 9:30 से 3 तक। तो इससे अच्छा है कि आप उस स्टेट से एग्जिट कर जाओ आफ्टर लाइक आफ्टर सम इंटरवल, हाफ एन आवर और 1 आवर, एंड देन यू कैन प्लान फॉर another entry whenever it will be good. Okay, instead of waiting for long time till market closing, and और उसमें भी मार्केट क्लोजिंग पे भी कोई भरोसा नहीं कि आपको वो ट्रेड जो आपका सही चला जाएगा, उससे और वर्स भी हो सकता है। तो अमाउंट का स्टॉप लॉस होना ही चाहिए, और अगर हम और टाइम वाइज भी हमको ज़्यादा वेट नहीं करना चाहिए एक पर्टिकुलर ट्रेड पर। अगर हमने इनिशियली उस टाइम को नहीं सोचा है, तो सपोज कि अगर हम इनिशियली सोच रहे थे कि हम बस एक स्कैल्पिंग करेंगे 1 से 2 मिनट की, और वो हमारे फेवर में नहीं गई, तो हमको उस 1-2 मिनट के अंदर निकल के बाहर आ जाना है, हमें वेट नहीं करना है। क्योंकि अगर हम वेट करेंगे तो वो 5,000 का जो लॉस है वो 10,000 हो सकता है, 10,000 का लॉस 20,000 हो सकता है। तो इसलिए स्टॉप लॉस होना ही ज़रूरी है, स्टॉप लॉस लगाना ज़रूरी है। एंड नाउ आई एम कमिंग टू नो ओवर ट्रेडिंग। तो वी शुड हैव एट लीस्ट लाइक मैक्सिमम 4 ट्रेड पर डे। क्योंकि अक्सर ओवर ट्रेडिंग में क्या होता है कि जैसे हमने फर्स्ट ट्रेड में 1,000 कमाया, तो दूसरी ट्रेड में 2,000 कमाया, तो क्या होता है कि तीसरी ट्रेड में फिर हम 2,500 या 3,000 लॉस कर देते हैं, या तीसरी ट्रेड में कमाया तो चौथी ट्रेड में लॉस कर देते हैं। किसी ना किसी उस मल्टीपल ट्रेड में क्या होता है कि हम किसी ना किसी एक ट्रेड में गलत गलत अपना डिसीजन ले लेते हैं, या गलत तरीके से एंट्री कर लेते हैं, और उसमें हमको नुकसान हो जाता है। या इस तरह से होता है कि हमने एक ट्रेड लिया, 2 ट्रेड लिया, और तीसरी ट्रेड में नुकसान हो गया, तो 2 ट्रेड तक हमें 2,000 हुआ था, पर तीसरी ट्रेड में 1,000 का लॉस हो गया, तो वो फिर से हमारा 1,000 हो गया। और 1,000 में से 1,000 में क्या हुआ कि फिर हमको जो थर्ड ट्रेड का जो ब्रोकरेज है वो भी हमको देना है। तो इससे क्या हुआ कि हमारा जो टोटल उस दिन का होगा वो 500 ही बनेगा। बट अगर हम 2 ट्रेड में रुक जाते और उस थर्ड ट्रेड को नहीं करते, तो हमारा एडिशनल ब्रोकरेज भी नहीं जाता, और हम 1,000 के अपने प्रॉफिट पे निकल जाते हैं। आई एम जस्ट जस्ट गिविंग एग्जांपल ऑफ दिस अमाउंट। तो आपको ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी है टू बिकम ए प्रोफेशनल ट्रेडर। एंड नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज ट्रेडिंग जर्नल। तो हर रोज आपको शाम को आफ्टर मार्केट क्लोजिंग टाइम आपको एक जर्नल बनाना है। सिंपली आपको ये लिखना है कि मैंने किस बेसिस पे एंट्री की और किस बेसिस पे एग्जिट की, क्या मेरी स्ट्रेटजी थी, और मतलब हाउ मैं एंड हाउ मेनी पॉइंट आई कैन गेट, लाइक आई कुड गेट इन दैट पर्टिकुलर ट्रेड। तो हमको पॉइंट वाइज देखना है कि अगर मैंने कितने पॉइंट लिए उस पर्टिकुलर ट्रेड में, और किस टाइम पे वो ट्रेड लिया। कि अक्सर जो भी ट्रेड मैं लेता हूँ वो दिन में लेता हूँ तो सक्सेसफुल होते हैं, या मैं आफ्टरनून में लेता हूँ तो किस टाइमिंग पे वो ट्रेड होते हैं जो मेरे ट्रेड जो है सक्सेसफुल होते हैं, या मार्केट क्लोजिंग टाइम पे जो ट्रेड लेता हूँ वो सक्सेसफुल फुल होते हैं। तो आपको एक आफ्टर लाइक 1 और 2 वीक्स आपको एक पैटर्न दिखाई देगा कि whenever you are in trade in the morning, then you are most of the time you are profitable, and in the afternoon if you go for the trade, so you get stuck or you book some losses. So so you will get some pattern from your trading journal, and also you will get you will get some data that how many like how much profit you are earning and how much you are giving in brokerage. So calculating brokerage is also very very important, because suppose if you are planning any trade and you just come out with that trade only with the profit of 100 or 200 rupees, so that will go in.
uh, that will go in this brokerage only. So there is no point of doing that trade. Okay. So always go with a strong entry. Like check your indicator, follow the market, check Nifty and the sector and the stock, and do the bigger time frame analysis. And you should have like you should have feeling that my entry is strong, and I am following the technical indicator and other chart pattern or candlestick pattern I'm following, and will exit from this trade after some time if it doesn't work out. तो तो आपका एग्जिट प्लान भी होना चाहिए कि अगर ये नहीं काम करता तो आई विल एग्जिट फ्रॉम दैट ट्रेड. ओके. सो नाउ कमिंग टू कीप चेकिंग अर्निंग एंड इकोनॉमिक कैलेंडर. तो आपको अर्निंग और इकोनॉमिक कैलेंडर चेक करते रहना चाहिए. मनी यू कैन गो टू moneycontrol.com or any other site. So earning means earning calendar comes in like in quarterly. So company announce their quarterly result. So these are earning calendar, comes under earning calendar. And economic calendar. Suppose if there is any global event or war global event is there, so that you can see in the economic calendar. So keep checking those things in the morning, like in before 1 or 2 hour from the opening of the market. You can check these things, and also keep checking the latest stock market news. So you should have also like awareness about the stock market news, what all is news are coming, and because mostly the stocks are news driven. So suppose if any company got any acquire any other company or got any order, okay, so stock price go up or go down, okay. So if you will have that news, so confidently you can do trade on that stock. So these are the point which can make you a प्रोफेशनल ट्रेडर. और और मैं ये भी चीज़ बोलना चाहूँगी कि प्रॉब्लम क्या होती है कि हम लोग सारे लोग मोस्टली सभी लोग ये सारे रूल जानते हैं, बट प्रॉब्लम ये आती है कि हम लोग इसको रियल मार्केट में फॉलो नहीं कर पाते हैं. और उसका सोल्यूशन ये है कि हम लोग पढ़ तो लेते हैं, हम लोग रूल समझ लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, बट हम उसको मार्केट में प्रैक्टिस नहीं करते हैं. और हम डिसिप्लिन के साथ इन सब चीज़ों की प्रैक्टिस नहीं करते हैं. और जो लोग प्रैक्टिस करते हैं और इनको डेली ट्रेड में अपने शामिल करते हैं या अपने ट्रेड में एग्जीक्यूट करते हैं, पीपल हु एक्चुअली एग्जीक्यूट दोज थिंग्स, सो दोज पीपल गेट बिकम प्रोफेशनल ट्रेडर. बट वो लोग जो सिर्फ आते हैं और बस यूट्यूब वीडियो देखा और पढ़ के निकल गए, और उसके बाद फिर अपनी ट्रेड की और फिर वही सब चीज़ें कर रहे हैं. क्योंकि मैंने अपने आई हैव आल्सो फेस दिस इशू इन इनिशियल माय ट्रेडिंग डेज, कि बहुत सारी चीज़ें पढ़ता था, बट रियल जब ट्रेड करता था तो यही होता था कि ये कि मैं रूल नहीं फॉलो करता था, और फिर प्रॉफिट होने या लॉस होने के बाद फिर एनालाइज करता था मैं ट्रेड. तो निकल के आता था कि मैं ये सब चीज़ों को जानता हूँ, बट फिर भी एक्चुअली रियल मार्केट में फॉलो नहीं कर पा रहा हूँ. But now I'm able to follow these things. So I will also request you just not only read these things or listen these things. Start practicing these things in your daily trade. Follow market, do bigger time frame analysis. Do like think about the exit from your trade before going into trade. Limit your position sizing, set a stop loss, and over trading मत करो. जर्नल अपना मेंटेन करो ट्रेडिंग का, और न्यूज़ अवेयरनेस रखो. तो ये सारे बेस दीज आर द बेसिक, और विल क्रिएट द बेस फॉर योर प्रोफेशनल ट्रेडर जर्नी. क्योंकि स्ट्रेटजीज क्या होती है, ये सब स्ट्रेटजीज आपकी आती जाती रहेंगी. आज कोई स्ट्रेटजी काम कर रही है, कल कोई स्ट्रेटजी नहीं काम कर रही है, बट ये चीज़ें ऐसी हैं जो हमेशा काम करेंगी.
तो इनके पहले आपको ये सब चीज़ें सीखनी है, उसके बाद आपको स्ट्रेटेजी सीखनी है, एंड देन यू विल हैव ए डेडली कॉम्बिनेशन एंड यू विल बिकम ए प्रोफेशनल ट्रेडर. So that's all from my side on this topic. And also, please comment in this video if you want me to discuss on any particular other topic, or if you want me to explain any other topic. So I'll be happy to explain. Please like, share, and subscribe my channel if you have liked this video. Thank you. Thanks for watching. Thank you. Bye bye.